محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کی وسائل کی تلاوت کریمہ میں خدا رب عالم ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو دائرۂ ایمان کے اندر، ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے جو دائرۂ ایمان کے باہر. اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو. یعنی سارے کریمہ میں اللہ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے. وہ یہ بتایا ہے کہ انسان مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ انسان ان تینوں اطاعتوں کا اقرار نہ کرے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور علماء کی اطاعت. مومن بننے کے لیے تینوں اطاعتوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ایمان کی ضدیں ہیں، ایمان کے مخالف عنصر ہیں، ان سے پرہیز کرتا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے مخالف عنصر کون ہیں، ایمان کی ضدیں کون ہیں؟ تو جب علماء سے سوال کیا گیا، علماء سے پوچھا گیا، تو علماء نے بتایا کہ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، ایمان کے 3 مخالف عنصر ہیں. شرک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں کفر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ مومن بننے کے لیے سب سے پہلے ان تینوں سے پیچھے چھڑایا جائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے. شرک کیسے دور ہوگا؟ مشرک کون ہے؟ کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ مشرک ہے. شرک دور ہوگا لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ کہا، شرک دور ہو گیا. اب کفر دور کرنا ہوگا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، لہذا کفر دور ہوگا محمد رسول اللہ سے. اب لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا، محمد رسول اللہ بھی ہو گیا، مگر ابھی انسان مسلمان بنا ہے، مومن نہیں بنا. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. میرے حبیب یہ منافق آ کر قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ منافق مومن کا ہمرنگ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. بالکل اسی طرح کے جیسے کسی ہری بھری ساتھ پر اپنے سب لباس کے ساتھ کوئی طوطا بیٹھا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ طوطا ہے یا پتا ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب وہ اوپر سے پھل کتر کتر کے زمین پہ گرا ہے یا مالک کے خلاف ٹاؤں ٹاؤں کی آواز لگائے. بس اسی طرح چمن رسالت میں بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. قسم خدا کی ہم کبھی نہ مانتے، ہم کبھی تسلیم نہ کرتے، مگر کیا کرے، فرمان اس کا ہے کہ جسے ہم نے نہیں دنیا نے صدیق کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے رسول میں منافقین کی پہچان ذکر علی سے کیا کرتے تھے. تو معلوم
थोड़ी देर इधर उधर देखेंगे तो बात डिस्टर्ब हो जाएगी। इधर उधर देखना और बेटा बात करना है। सलमान मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक है, फिर बात दुलानी हो जाएगी। आप लोग मेरी तरफ देखिए, इसे अगर नींद आ रही है तो दुलाना बाबा से बोलो सलावत पड़े उसमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए कुर्बानी है ये कुर्बानी। परसों के साल भर में अगर हम 10 रातें इमाम हुसैन के लिए नहीं दे सकते तो फिर किसके लिए दे सकते? अरे कहते साहब करबला में उन्होंने अपने इमाम के साथ थे, उन्होंने जख्मी हुए अपने बच्चे के हल खाए तीर खाए। जब हम थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसा ना हो कि वो चराग हो जाती है आगे जो है तो उनमें हमारा शुमार ना हो। मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। भाई घंटा 2 घंटा तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। 40-45 के बीच में जो है लेकिन आगे जब देख लेता हूँ क्या बोल रहा है मैं तो हो गया तो मैं नहीं लगा मैं तो अंदाज का जाके नहीं लेकिन इतनी में सोच के आया भी याद करके हमने इतना ही पढ़ना है। जहाँ मैं देखता हूँ कि मोहम्मद थक चुके हैं मैं इसमें रुपये बदल देता हूँ। इस तरह से मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सहाबा के कुरान की आयत रसूल की हदीस सहाबा के इरशाद की रोशनी में हमने क्या पढ़ा? तो बात से बोलिए सब बोलो मिलके क्या पढ़ा? ऐसे नहीं बोला था बात से पढ़े अलीउल्लाह। अब तो बन गए मोमिन, अब तो जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन माफ कीजिए जन्नत में जाने के लिए मोमिन होने की भी शर्तें हैं। उलमा बताते हैं, जब आप उलमा से पूछेंगे जन्नत में जाने के लिए मोमिन होने की शर्त है तो उलमा कहते हैं कि कायनात का जर्रा जर्रा मोमिन है, पत्ता पत्ता मोमिन है, जर्रा जर्रा मोमिन है, रेजा रेजा मोमिन है। अगर पत्ता पत्ता मोमिन है, रेजा रेजा मोमिन है, अगर सारे जन्नत में चले गए तो जो लड़ाई झगड़ा हंगामा फसाद या पीछा नहीं छोड़ता जन्नत महफूज रह जाएगी। जो लड़ाई झगड़ा यहाँ होता है वही वहां करोगे। आज इंसान अमल किस लिए करता है? नमाज किस लिए पढ़ते हो? जन्नत के लिए। मजलिसें क्यों कर रहे हो? जन्नत के लिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं जन्नत के लिए कर रहे हैं। अल्लाह सबको जन्नत में पहुंचाए। मगर याद रखिए इस धरती पर इस जमीन पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं। वो यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि 2 मुल्क हैं। एक मुल्क का नाम जन्नत है, एक मुल्क का नाम जहन्नम है। यहाँ पर जो भी है कोई जन्नत का बाशिंदा, कोई जहन्नम का बाशिंदा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने सीधा जन्नत या जहन्नम में क्यों नहीं भेज दिया? जो कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अल्लाह को चाहिए था कि सबको जन्नत में भेज देता, या कुछ को जन्नत में भेज देता, कुछ को जहन्नम में भेज देता। मगर नहीं, अगर वो सबको जहन्नम में भेज देता तो जो यहाँ हंगामा होता है फसाद होता है वो वहां पे भी होता। ये आपका रोजाना का तजर्बा है। हमारा घर तो जन्नत
की नेमतें खा रहे, तवज्जो कीजिएगा, वो तो जन्नत की नेमतें खाते, जन्नत के नजारे करते, कहते सुभान अल्लाह, क्या नेमतें हैं, क्या गिज़ाएं हैं। वो जिन्हें जहन्नम में भेजता वो रोजाना हड़ताल पे बैठते। वो रोजाना हड़ताल करते, या अल्लाह हमारी खता क्या थी, हमें बगैर गुनाह के जहन्नम में भेज दिया। अल्लाह ने कहा खबरदार, ना मैं किसी को जन्नत में भेजूंगा, ना मैं किसी को जहन्नम में भेजूंगा, बल्कि मैं तीसरी दुनिया बना रहा हूँ, सबको वहां भेज दूंगा और वहां पर दोनों मुल्कों के सफारत खाने खोल दूंगा, जन्नत का भी जहन्नम का भी। बस जिसका वीजा लाओगे उसी मुल्क में भेजूंगा। बस जन्नत का वीजा लाओगे जन्नत में भेज दूंगा, जहन्नम का वीजा लाओगे अब ये तुम्हारे अख्तियार में है कि किसका वीजा लेकर जाओ। तो जन्नत में जाने की शर्तें हैं, बगैर शर्त के कोई ये ना सोचे कि 4 हाथ सीने में मार के जन्नत में कब्जा हो जाएगा, ये गलत फहमी है। बहुत से हमारे जाकिरों ने, मौलियों ने तुम्हें गुमराह करके रखा है कि इमाम हुसैन पे आंसू बहाओ, जन्नत तुम्हारी, तुम्हारे बाप की। नहीं, जन्नत तुम्हारी नहीं है। बोले अल्लामा मोहम्मद अजहर साहब कलकत्ते कहते हैं, भाई हमारे समाज का अजीब कल्चर है, काम करते हैं यजीद की फैक्ट्री में, तनख्वाह लेना चाहते हुसैन से। इस सलावत बड़े मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत बड़े मोहम्मद तो जन्नत में जाने की शर्त है, बगैर शर्त की जन्नत में भाई आप यहाँ रहते हैं। जन्नत कोई हरदोई की किसी तहसील का नाम नहीं है, ये बिस्तर बोरिया सर पर रख के जिसका दिल चाहे चला जाए। जन्नत में जाने के लिए शर्त है भाई, यहाँ पर आप साड़ी में रहते हैं, अगर यहाँ पर रहने के बाद आप कोई छोटा सा मकान खरीदना चाहें, छोटा सा मकान खरीदना चाहें तो क्या वैसे ही ले लेंगे? चाहे आपके कितने ही पक्के दोस्त क्यों ना हो, अगर आप साहिबे अक्ल हैं, भले वो बिगड़ जाए, भाई तुम्हारी दोस्ती है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? तो अगर थोड़ी सी बदले आप यही कहेंगे भाई ठीक है मेरी तुम्हारी दोस्ती है, मुमकिन है कि हमारी आपस के बाद जो औलाद है उनमें आपस में दोस्ती ना हो, ज्यादा कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। बगैर सबूत के आप तराजी प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो जन्नत कैसे मिल जाएगी? जन्नत में जाने के लिए हमारे पास रजिस्ट्री होनी चाहिए। आइए हम ढूंढे, जब हमने ढूंढना शुरू किया तो अल्लाह ने कहा खबरदार, परेशान क्यों होता है? अरे मैंने तो कागजात मिल्कियत हर कलमा पढ़ने वाले के घर में रखवा दी है, जाके देख लो, कागजात मिल्कियत का नाम कुरान है, रजिस्ट्री का नाम सूरह तहर है, रजिस्ट्री का नाम सूरह तहर है। अब जो हमने रजिस्ट्री को पढ़ा तो लिखा था बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, अल्लाह ने जन्नत और हरीर जन्नत सब्र की जगह में आले मोहम्मद के हवाले कर दी। देखिए सब्र और जदा दो चीजें होती हैं, अल्लाह ने अता में नहीं बल्कि जदा में दी। बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, जब हमने ये शरीर में नाम पढ़े तो 4 नाम लिखे, कितने? 4 नाम, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। चारों के लिए पैगंबर ने कहा, अली के लिए क्या हुब्बोली जवाद अली झंडा,
फातिमा के लिए कहा सैयदुन निसाइल आलमीन, हसन हुसैन के लिए कहा अल हसन व हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। कुरान की आयत नबी के फरमान की रोशनी में अल्लाह ने जन्नत और हरीर जन्नत को सब्र की जगह में आले मोहम्मद के हवाले की। देखिए अता और होती है, जगह और होती है, अता में और जगह में फर्क होता है। अता की देखते कहते हैं, बच्चों के लिए मिसाल दे दूं ताकि बच्चों की बात समझ में आ जाए। मैं आ रहा था, रास्ते में एक फकीर मिला, मैंने अपने साथी देखा कि भाई इसे 1 रुपया दे दीजिए, उसे जेब से निकाला दे दिया, वो बिगड़ गया। जनाब शर्म नहीं आती, महंगाई का जमाना है, 1 रुपये में क्या होता है। मुझे गुस्सा आया, मैंने वापस ले लिया। ये मैंने वापस क्यों ले लिया? क्यों ये मेरी अता थी, जदा नहीं थी। जदा क्या है? मैं टेलर मास्टर के पास गया, मैंने कहा मुझे जोड़ी कपड़ा सिलवाना है। उन्होंने कहा 200 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कपड़े सी दिए। अब मैं 200 में से 1 रुपया भी नहीं रख सकता। क्यों? ये उसकी जगह है, अता नहीं है। भाई हसनैन अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी के लिए रोजे रखेंगे, रसूल ने कहा मन्नत मानो, मन्नत मानी गई, रोजे रखेंगे। अच्छा रोजे रखे तो कभी का फकीर आया, कभी साहिल आया, कभी मिस्कीन आया, कभी असीर आया, रोटियां उठा के दे दी। 3 दिन तक रोजे रखे। अच्छा रोजे कितने रखे? अली ने रखा, फातिमा ज़हरा ने रखा, हसन हुसैन ने रखा, रसूल ने रोजे नहीं रखा। जबकि रसूल ने कहा मन्नत मान दे कि मैं अकेले जा रहा हूं आपको। रसूल ने तो इतना कहा कि मन्नत मान लो। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूल ने रोजे क्यों नहीं रखे? रसूल को रोजा रखना चाहिए था, मगर रसूल ने कहा सिर्फ मन्नत मानो, रसूल ने रोजे नहीं रखे। अब मुझे क्या पता क्यों नहीं रखा? ये तो हाईकमान की पॉलिसी है, वो जाने उसकी मसलियत। लेकिन मेरी बात समझ में आई कि सबने रोजे क्यों रखे, रसूल ने रोजा क्यों नहीं रखा। मैं रास्ते में आ रहा था, रास्ते में मुझे एक आम का बाग दिखाई दिया, क्योंकि आम का मौसम है। मैंने कहा भाई ये बाग किसका है? मोहम्मद भाई ने कहा भाई ये पहले बाग हमारा ही था, मगर हमने बेच दिया है। हमने कहा किसने खरीदा? उन्होंने मुझे 5 आदमी बताए, भला 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 भला। 4 आदमी ऐसे थे कि जिनसे मेरी दुश्मनी थी, मेरी मुखालफत थी। एक आदमी ऐसा था जो मेरा दोस्त था। मैंने कहा भाई आम तो खाने, मैंने कहा भाई कुछ ना हो आम तो खाने। अल्लाह ने अगले दी, फिर मौलवी बनाया, जैसे मौलवी से काम लिया जाए। मैं सोच के बाद में घुस गया कि अगर वो 4 आ भी गए तो मैं उनसे कहूंगा भाई तुम्हारे हिस्से तो नहीं खा रहा। तो जाग जाइए भाई, मैं तुम्हारे हिस्से तो नहीं खा रहा, बल्कि जो तुम्हारा 5वां साथी है उसके हिस्से में खा रहा हूं।
سورہ مارج میں ارشاد فرمایا جنت میں جانا آسان نہیں ہے. اور انسان آسانی سے کہتے ہوئے کہ نماز پڑھ کے یہ علم نکال کے دیتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. جنت میں جانا آسان نہیں ہے. خداوند عالم نے سورہ مارج میں ارشاد فرمایا کہ انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری نعمتوں والی جنت میں چلا جائے گا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں نے تجھے نجیس نطفے سے بنایا؟ میں نے تجھے نجیس نطفے سے بنایا. بنایا تجھے بنانے کے بعد کہتا ہے کہ نجیس نطفے سے بننے والا نہیں جنت میں نہیں. ہم نے بھی دو کام کیے جنت کے لیے. نماز پڑھی جنت کے لیے, روزہ رکھا جنت کے لیے, حج کیا جنت کے لیے, زکات دی جنت کے لیے, خرچ نکالا جنت کے لیے, عزاداری کی جنت کے لیے, قبر و تقسیم کے جنت کے لیے, جلوس نکالا جنت کے لیے. اب کہتا ہے کہ میری نعمتوں والی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یاد اللہ کہے گا یاد رکھ میں نے صرف تجھے ہی نجیس نہیں بنایا, بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہے, کوئی نجیس ایسا نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا پاک کرنے والا نہ بنایا ہو. کیا اپنا پاک کرنے والا تلاش کر لے. اپنا پاک کرنے والا تلاش کر لے. اب پوچھو شیعہ سنی علماء سے کہ اگر نجاسات 11 ہیں تو پاک کرنے والی چیزیں 14 ہے. پاک کرنے والا ضرور بنایا ہے. کپڑا نجیس ہو جائے پاک کرنے والا پانی کو بنایا ہے. تلوا نجیس ہو جائے پاک کرنے والا مٹی کو بنایا ہے. دیوار نجیس ہو جائے پاک کرنے والا سورج کو بنایا ہے. مال نجیس ہو جائے پاک کرنے والا خمس و زکات کو بنایا ہے. حسب نسب پاک کرنا ہو تو ولایت علی کو بنایا ہے.
وآل محمد. منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا. منافق کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا. بھگوڑوں کو کبھی شیر جلی اچھا نہیں لگتا. اور صحابہ کی محفل میں محمد نے فرمایا غلط ماؤں کے بچوں کو ولی اچھا. صلوات پر اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا چاہتے نام علی مٹا دیا جائے, نام حسین مٹا دیا جائے, نام فاطمہ مٹا دیا جائے. آج دنیا کتنی ہمارے ناروں سے بہت کرتا ہے. اور اگر یہ کہتا ہے صاحب فلاں ذکر علی سے دور ہے تو اعتراض نہ کیا کرو. کبھی کبھی ایک سوال ہمارے درمیان میں آتا ہے کہ ولی کے ماننے والے کتنا تھوڑے سے ہیں, نہ ماننے والے زیادہ ہیں. تو کبھی اپنی قلت پر افسوس نہ کرنا بلکہ فخر کرنا. اس لیے کہ کامیابی کا معیار اگر اکثریت ہوتی تو کربلا میں یزید کی جیت ہوتی, حسین کی ہار ہوتی. لیکن امام حسین نے بتایا کہ کامیابی کا معیار اقلیت اور اکثریت نہیں ہوتا, بلکہ دیکھنا جاتا ہے کہ نظریہ کیا ہے. نظریے کو دیکھو. آج دنیا ہمارے نعروں سے خوف زدہ ہے. بھائی ہمارے پاس دو ہی تو نعرے ہیں, ایک نعرے حیدری, ایک لبیک یا حسین. ایک لبیک یا حسین, ایک نعرے حیدری, ایک نعرہ باپ کا ہے, ایک نعرہ بیٹے کا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب باپ کا نعرہ نعرے حیدری لگتا ہے تو قومیں گھبراتی ہیں, اور جب لبیک یا حسین بیٹے کا نعرہ لگتا ہے تو حکومتیں لڑتی ہیں. سلام محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ڈاکٹر طاہر القادری اہل سنت عالم بڑی اچھی بات کہی. ان سے کہا کہ اگر کچھ لوگ ذکر علی سے دور ہیں تو انہوں نے کہا اعتراض نہ کیا کرو. جو ذکر علی سے دور رہتے ہیں ان پر اعتراض نہ کیا کرو. ان سے کہ بھائی ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ اہل بیت کے رزق قریب نہیں آ سکتا. اب سوچئے, رزق یعنی گناہ, رزق یعنی گندگی, نجاست. تو سوچئے کہ جب نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی تو پھر نجس انسان کے اہل بیت کے قریب کیسے آ جائے گا؟ صلوات پر محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. دنیا نام علی کو مٹانا چاہے, نام حسین کو مٹانا چاہے, اس لیے کہ قدرت نے کہا فرق کرو نہیں, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر. محمد والے محمد نے اللہ پر اتنا ذکر کیا. جب اللہ کی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ قدرت کا وعدہ ہے. تو قدرت کے وعدے میں کوئی یہ ذکر کیا دین اسلام کو مٹانے کی جانتا ہے کہ حسین فرزند رسول 55 ممالک یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. لیکن یزید یہ بھی پریشان تھا کہ حسین بیعت کرنے, اس لیے کہ جانتا تھا کہ جو حیثیت ساری کائنات کی ہے وہ وقار زہرا کے لال حسین ابن علی کا ہے. حسین
اسلام کو دکھانے کے ہم اسلام کو ختم نہیں ہونے دیں. دربار میں بلایا کیا تم کاربار امام نے نہیں کہا. نہیں کہنے کے بعد یا تو شرم میں تشریف لائے. بہن زینب نے کہا بھیا کیوں بلایا تھا؟ کہ بہن یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. اب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. بھیا تم امام وقت ہو, امام وقت کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہی میں نے ماں کے بعد تمہیں ماں سمجھا ہے, بھلے تم چھوٹی رہے. بھیا اگر یہ بات ہے تو تم اس سے نہیں کہہ دو. حسین نے سر سجدے میں رکھا, پروردگار شکر ہے تیرا کہ میری نہیں کے ساتھ میری بہن زینب کی نہیں شامل ہوگی. اب تو نہیں شامل ہوگی. اس کے بعد امام نے سجدے سے سر اٹھایا اور بہن میں بھی نہیں کہہ کے آیا ہوں اور تم بھی نہیں کہہ رہی ہو, مگر یاد رکھو اس نہیں کا ہمیں تمہیں دونوں کو مل کر امتحان دینا پڑتا. قربانیاں دینا پڑے گی. آپ میرا امتحان لے رہے ہو یا نہیں؟ امتحان نہیں لے رہے, قربانیاں دینا پڑے گی. کہا بھیا میں تیار ہوں, میں عورت ہوں, تم مرد. باہر کی ذمہ داری تمہارے اوپر, گھر کی ذمہ داری میرے اوپر. باہر کا کام تمہیں سنبھالنا ہے. کہ بھیا میں ایسی قربانی دوں گی کہ تم بھی بھائی قربان کرو گے, میں بھی بھائی قربان کروں گی. تم بھائی قربان کرو گے عباس جیسا, میں دو بھائی قربان کروں گی, ایک عباس جیسا ایک حسین جیسا. تم بھی قربانیاں دو گے, میں دو بیٹے قربان کروں گی, تمہارے بھی دو بیٹے قربان ہوں گے. تمہارے بیٹے ایک اکبر جیسا ہوگا, ایک اصغر جیسا ہوگا. میرے بیٹے ایک کون ہے, ایک محمد ہے, مگر میرے بیٹے ان کے غلام. آج یہ مجلس سے ہو رہی ہے, یہ زینب خدا کا صدقہ ہے. اگر انہوں نے کوفہ اور شام کے بازار میں خطبے دیے نہ ہوتے تو آج کربلا کو یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ زینب قربانی, زینب خدا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آ گیا ہوا مدینے سے قیام ہوا. بہن بھائی تیار ہو کر مدینے میں آ گئے. 7 محرم آئی, خیموں میں پانی ختم ہو گیا. خیموں سے اللہ تعالیٰ کی صدا ہوا. یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ عاشور کا دن مبارک, قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ادادارو آج چھٹی محرم, یہ چھٹی محرم. ابھی آپ نے سماعت فرمایا دوبارہ سے کہ جناب علی اکبر سے منسوب, حسین کے قریب جوان. جوانوں اٹھ پھوٹ کر نہ رونا. شہزادی نے جب اپنے لال حسین کی شہادت کا ذکر سنا تھا, کہا تھا میرے لال پر روئے گا کون. نبی نے کہا تھا کہ جوانوں کا ماتم کرے, جوانوں تو علی اکبر کا ماتم. کون علی اکبر جو لیلا کا چاند, وہ علی اکبر کے جب جناب
जनाब अकबर की विलादत हुई है। तो तारीख बताती है कि इमाम हुसैन ने जनाब अकबर को दिया और लेने के बाद मस्जिद में आकर मुसल्ले पर बिठा दिया और कहा परवरदिगार गवाह रहना, मैं तेरी बारगाह में हदिया दे रहा हूं। उसके बाद बोला वापस हुए, सारी ज़हरा मस्जिद में पहुंची, परवरदिगार इस हदिये को मुझे दे। सानिया ज़हरा जनाब अकबर को लेकर आई और इस अंदाज से तरबियत की जनाब ज़हरा ने जनाब अकबर की कि मशहूर हो गया था कि अली अकबर ज़ैनब का बेटा। बड़ी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे दादा। तारीख बताती कि मर्तबा रात का अंधेरा था, झूले में अली अकबर थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा कुछ साया। अब पूछा कौन? कहा ज़ैनब खामोश रहो, मैं हुसैन, मुझे अली अकबर की मोहब्बत सोने लगी। ऐसा हसीन बेटा कि जिसकी हुस्नो हुस्न का चर्चा था, जब इनकी विलादत हुई मालूम है और इनकी खूबसूरती का चर्चा चारों तरफ फैला, तो एक एराबी इमाम के खिदमत में आता, आने के बाद कहता मौला मैंने सुना है खुदा ने आपको एक हसीन बेटा दिया, एक खूबसूरत बेटा अदा किया है। मौला ने उसे बिठाया, तो मौला मैं आपके बेटे की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। मौला ने बुलाया, बुलाने के बाद उसने मौला के बेटे को देखा और देखने के बाद क्या मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि खुदा मुझे भी ऐसा बेटा दे, खुदा मुझे भी ऐसा बेटा दे दे। अब सुनेंगे दादारो, एक मर्तबा इमाम ने कहा ए यार अभी मैं दुआ कर दूंगा, खुदा तुझे ऐसा बेटा दे देगा, लेकिन मुझे इतना बता दे कि जब ये बेटा जवान हो जाए और इस जंगल में चल रहे सीधा में चल रहा हो, उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त करेगा? से तड़प गया और तड़पने के बाद क्या मौला मेरी आंख में छूट जाए, ये गवारा है, मगर ये गवारा नहीं है कि उसके पैर में कांटा चुभ जाए। मौला ने फरमाया भाई तुझे क्या मालूम, मेरा यही बेटा होगा, करबला का मैदान होगा, इसका सीना होगा, पर्ची की हड्डी होगी। खुदा आपकी जिंदगी में न उठाए सिवाय बदलों में करबला। हाँ दादा वक्त में आया कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो गया और एक वक्त आता है कि ये जवान बेटा हाथों को जोड़कर इमाम के सामने खड़ा हो गया, मौला मुझे मरने की इजाजत दीजिए। क्या बेटा तुमको तुम्हारी फूफी ने पाला, पहले फूफी से इजाजत लो। फूफी के पास आए, फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। क्या मेरे लाल क्या मैंने तुमको इसीलिए पाला था? फूफी अम्मा जल्दी कीजिए, इसलिए कि दुश्मन मेरे बाबा को ताना दे रहे हैं। फूफी से इजाजत ली, माँ के पास आया, माँ मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। क्या मेरे लाल क्या माँ को इसीलिए ला थे कि आलम गुर्बत में माँ को तड़पता हुआ छोड़ के चले जाओ। माँ से इजाजत मिली। अगर तारीख बताती है कि जब जनाब अकबर बीवियों से रुखसत होकर चलना चाहते थे तो तारीख हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि खेमे का पर्दा बार बार उठता था, बार बार गिरता था। खेमे का पर्दा बार बार उठता था, बार बार गिरता था, कोई दामन थाम लेती थी। हाँ दादारो तारीख बताती है कि जब जनाब अकबर रुखसत होकर चले तो ऐसे खेमे से बरामद हुए कि जैसे खेमे से जैसे किसी बड़े घर से जनाजा निकल रहा हो। उठ के ना रहिए, जैसे किसी भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। हाँ दादा उसके बाद एक मर्तबा इमाम आले मकाम की खिदमत में आते हैं। इमाम आले मकाम ने अपने तरीके से तैयार किया, तैयार करने के बाद अली अकबर को सवार किया और जब सवार करने के बाद इधर अली अकबर मख्तल की तरफ चले, इधर हुसैन ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ करके कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार अब तेरी बारगाह में हो जा रहा है जो सूरज
ये क्या देखा कि सही बाप अपने हाथों से कमर को थामे चला रहा है। एक मर्तबा अकबर रुके, क्या बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके, अब क्यों आ रहे हो? क्या बेटा काश तुम साहिब औलाद होते, बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता एक जवान बेटे की मोहब्बत क्या होती है। क्या बाबा आपको आपको मेरे हक की कदम खेमा गाह में वापस जाइए। अदादारों इमाम खेमागाह की तरफ चले, अली अकबर मक्तल की तरफ चले। अदादारों हुसैन दरे खेमा पर है, इज्जा दरे खेमा पर खड़ी है, उम्मे लैला मुसल्ले पर है, हुसैन के चेहरे को देख रही है। अदादारों तारीख बताती है अली अकबर मक्तल में पहुंचे, मक्तल में जाने के बाद हमले पर हमला किया। इधर तारीख बताती है इधर हुसैन के चेहरे को बिंदा देख रही थी, रिजा के चेहरे को उम्मे लैला देख रही थी। एक मर्तबा चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, क्या मेरे लाल की खैर, कहा लाल तो सही सलामत है, मगर उम्मे लैला एक नामी पहलवान तेरे बेटे के मुकाबले में आया है। ए उम्मे लैला तेरा बेटा 3 दिन का भूखा प्यासा है। उम्मे लैला मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक में जल्द कबूल होती है, दुआ करो। अदादा ने सुनना था। एक मरतबा उम्मे लैला ने बीवियों का आवाज दी, ए बीवियों मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहना। एक मरतबा दुआ करना शुरू की, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले मेरे याकूब को मुझसे मिला दे। अदादारो तारीख बताती है अभी दुआ तमाम ना हुई थी कि खबर आई कि अली अकबर वापस आए हैं। अदादारो तारीख बताती है कि जब जनाब अकबर वापस आए हैं तो पहचाने नहीं जा रहे थे, सिरा की कड़ियों से खून टपक रहा था, गुलाबी होंठ बूढ़े हो गए थे, प्यास की शिद्दत से जबान चढ़वा रहे थे, कह रहे थे हाय प्यास हाय प्यास। एक मर्तबा इमाम से कहते हैं मौला मौला, एक मर्तबा हाय प्यास, मेरा थोड़ा सा पानी मिल जाता। एक मर्तबा जनाब अकबर कहते बेटा अपनी ज़बान मेरे दहन में दे दो। एक मर्तबा अकबर ने अपनी ज़बान दहन हुसैन में दी, फौरन खींच ली। अदा बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। अदादारों मालूम है ये जनाब अकबर ने पानी का मुतालबा क्यों किया? ये पानी का मुतालबा अपने लिए नहीं किया बल्कि दुनिया को बताया कि हुसैन की प्यास का आलम क्या है, कि मेरा बाबा सबसे ज्यादा भूखा प्यासा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। और का बेटा जाओ तुम्हारे दादा तुम्हें जाने को उधर से सेराब करेंगे। अदादारों जनाब अकबर दोबारा मैदान में आए, हमले पर हमले किए, कहाँ तक लड़ते। एक जालिम ने चुपकर सीने पर ऐसा वार किया कि अली अकबर घोड़े पे संभल ना सके। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। सुनोगे दादारो जिस जालिम ने बरसी का फल लगाया है ना अकबर के सीने में, उसने कहा था अकबर मैंने सुना है तुम्हारा बाप बड़ा साबिर है, देखता हूँ तुम्हारे बरसी के फल को हुसैन कैसे निकालता है। हाँ दादा एक मर्तबा आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन इस आवाज को सुनते ही इस आलम में पहुंचे। तारीख बताती है हुसैन कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं। इस अंदाज में पहुंचे, कभी उठे तो कभी शाये मशरक गैर गिरे। लिखा ये है कि 72 जगह हुसैन। दादा उधर एक मर्तबा बाप अली अकबर के सराहने पहुंचे। खुदा किसी बाप को अपने बेटे का ये मंजर ना दिखाए जो हुसैन ने देखा। क्या देखा कि जवान लाल जमीन पर एड़िया रख रहा। तो बेटा क्या हाल है? का बाबा सीने में नेज़े क्या नहीं रह गई है। हाँ दादारो एक मर्तबा हुसैन ने अपनी कोहनियों को एक मर्तबा आसीन को उल्टा और आसीन को रखने के बाद एक मर्तबा अकबर के सीने में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद बरसी के फल को पकड़ा और बरसी के फल को पकड़ने के बाद कहा बिस्मिल्लाह बिल्लाह। अरे बरसी के फल के साथ अकबर का कलेजा भी निकल आया। अदादारो जो इस मजलिस को मर्द नए हैं मैं उनसे कहूँगा अरे चलिए हुसैन का बेटा दुनिया से सिधार गया, हुसैन को उनके लाल का पुरसा दे दीजिए। और जो औरतें सुन रही हैं उनसे कहूँगा चलिए उम्मे लैला को उनके लाल का पुरसा दे दीजिए। हुसैन गरीब हो
हो गया हुसैन का जवान बेटा। अजादारो अब बूढ़ा बाप है, जवान का लाशा है, हुसैन जवान लाल के लाशे को खेमे में कैसे ले जाए। अजादारो आपने देखा होगा बताएंगे जुमले कि जब जनाजा उठाया जाता है तो 4 आदमी होते हैं, तो आगे होते हैं, तो पीछे होते हैं, तो आगे से संभालते हैं, तो पीछे से संभालते हैं, मगर हाय हुसैन की गुर्बात, जवान का लाशा हुसैन कैसे उठाए। एक मर्तबा हुसैन ने सीने से सीना मिलाया, या अली कह के लाजे अकबर को लेकर चले, तेरे खेमा के करीब आकर